Let's start today's session. So we have seen different ways to rank the results and different way to evaluate the results as well. So now we have to see that how to compare the search engines. So basically, after the era of 1998 plus, so it is pioneered by Google. So it blew away all early search engines at that time. Except Inktomi was not that was using the different strategy, and Yahoo was also using the different strategy. So this is actually a history that you might be aware or you might not be aware, but we have we have actually passed through this history. So at that time, it was a great user experience in search of a business model. So meanwhile, there were many like GoTo overtures. Their revenues were reaching $1 billion. So at that time, it was not. Nobody has assumed that Google will reach to that particular stage, which is currently now. Google started adding paid search ad, which was earlier not there, to the site, and again Google's way of charging from the advertiser is very different. They use a AdSense model. The number of clicks that you get, based on that they charge the person. So that was also very unique. So that gives the user or the advertiser that their ad will be seen by the user, and these are usually independent of the search results. Yahoo followed the suit. They tried to acquire the overtures and Inktomi. So they tried to compete with the Google. After 2005 plus, Google gains in the search share. So it started dominating in Europe and very strong in North America. And obviously in China they have their different search engines. In India, internet still was in the reach of only top 10% people only. So Yahoo and Microsoft they tried to combine, but Yahoo didn't agree at that time, and again that deal was not well paid off. So these were the kind of this is a very old picture. Even if you nowadays if you look at the picture, you will see that you will get paid search ads and algorithmic search results and other things. So Google has evolved a lot during all these years. So what Google is doing is, so on one side there is web, which Google is indexing. So Google's web spider or web crawlers, so they keep on looking at the web and keep on looking for the pages and keep on indexing it. So this process is never ending. And once indexer indexes it, so there are multiple indexes. We have seen that multiple tier, uh, even we have ngram indexes for spell checking, and we have soundex indexes, and so all of these we have seen in the last few lectures that indexing is not at one place, but there are multiple levels. So primary level, secondary level, and there are multiple ways we do indexing, and this keep on happening. So this is independent of the user query. Now, index for advertisement is separate. So these indexes are created separately. Now, once the user gives the query, user enters a query. So it is searched in both in these indexes as well as in the advertisement index. So parallelly, this is being searched, and after parallelly searching it, whatever results which are there, they are given. So there are sponsored results, and that you have seen that Google is using different ways. So sometimes पहले 3-4 रिजल्ट ही स्पॉन्सर्ड होते हैं, उसके साथ लिखा होता है ब्रैकेट में स्पॉन्सर्ड, और
कई बार उनके शॉपिंग के लिए जैसे अभी आजकल करोगे तो बट डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या सर्च कर रहे हो. सपोज यू ट्राई टू सर्च सम प्रोडक्ट, ठीक है, जो तो अभी आजकल किन किन साइट्स पे अवेलेबल है वो साइट पे आ जाएंगे एडवर्टाइजमेंट्स, एंड फिर कुछ स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स आ जाएंगे और एक्चुअल वेब के इंडेक्स के रिजल्ट उसके नीचे आएंगे. सो और ये पेज डिफरेंटली क्रिएट होता है फॉर ऑल द पीपल्स एंड डिपेंडिंग ऑन देयर चॉइसेस. एंड गूगल नाउ यहाँ पे ऐड किसकी दिखनी चाहिए और किसकी ऐड पे क्लिक होना चाहिए, गूगल चार्जेस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्लिक्स दैट यू डू इट फ्रॉम द पीपल. सो दैट्स व्हाई एडवर्टाइजर आर आल्सो हैप्पी कि हाँ भाई उनसे उतना ही चार्ज किया जा रहा है जितने क्लिक उनको मिल रहे हैं. So in this way the web search engines are earning the incomes. और पहले रिजल्ट्स कहाँ पे आएंगे और बाकी के रिजल्ट्स कहाँ पे जाएंगे. So the first page is very important in the earning of the Google. Now if you look at users की needs को अगर हम क्लासीफाई करें, जो आपकी भी क्वेरीज हैं, जो आप सर्च इंजन पे क्वेरीज करते हो. So this is taken from a 2004 pages. Even though still we agree with these things. ज़्यादातर आपकी queries you want to learn something, you want to know something. आपकी queries ऐसी होंगी to learn. Then your queries are also to go to that page. Suppose आपने किसी यूनिवर्सिटी के पेज पे जाना but you don't know कि क्या एड्रेस है, तो your query is to look for that particular website. You want to go to that page. आपको एक्चुअल एड्रेस नहीं पता, सो नेविगेशनल सर्च होगी. देन ट्रांसैक्शनल, यू वांट टू डू समथिंग, सो कोई सर्विस आप लेना चाहते हो, कुछ बिल पे करना चाहते हो, कुछ डाउनलोड करना चाहते हो, कुछ शॉपिंग करना चाहते हो. सो दीज नंबर्स 2002 से 2004 में, सो दीज वेरीज एंड दीज वेरीज फ्रॉम एज ग्रुप एज वेल. कौन सा एज ग्रुप सर्च कर रहा है, और लोअर एज ग्रुप ऑब्वियसली द माइट बी डूइंग मोर इंफॉर्मेशनल rather than transactional. At a particular age they might be doing more transactional than the less informational. And then apart from these three areas, then there are many gray areas. You want to find a good hub, कोई ब्लॉग आप ढूंढना चाहते हो, कोई ट्रैवल ब्लॉग ढूंढना चाहते हो, कोई फूड ब्लॉग ढूंढना चाहते हो, या कुछ वैसे ही कुछ वेबसाइट या कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर सर्च करना चाहते हो. एक्सप्लोरेटरी सर्च है where you are not focus on one query but you just want to explore the things about certain things. तो एक पर्टिकुलर डोमेन को ही सर्च करना चाहते हो. सो एज ए सर्चर यू आर इन दिस कैटेगरी. सो यू आर डूइंग मल्टीपल काइंड ऑफ सर्च. सो ये आपके दिस कम्स इनटू दिस एरिया. सो ज्यादातर हमारी सर्च इसी टाइप की होती है. वी डू इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल एंड ट्रांजैक्शनल्स. सो वी वांट टू लर्न, एंड ये नंबर वेरीज कर सकते हैं फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप. एंड अगेन पर्सन, कोई पर्टिकुलर पर्सन मे बी मोर इंफॉर्मेशनल होगा, बट दिस इज ट्रू. अभी तो जितने भी ब्राउजर्स हैं, देयर नेविगेशनल बार इज सेम एज द सर्च बार. अर्लियर इट वाज नॉट देयर. अर्लियर जब भी आप ब्राउजर खोलते थे तो नेविगेशनल बार अलग होती थी. कई बार हम पहले google.com खोलते थे, वो हैबिट अभी भी कई लोगों की है. google.com खोलते थे, फिर उसके अंदर हम सर्च के लिए क्वेरी देते थे. बट नाउ we know that we can do the query directly into the your navigation and search bar. ब्राउजर के ऊपर जो एड्रेस बार है, that is also a search bar, that is also a navigation bar. वहीं पर क्वेरी लिख सकते हो आप, और उसको लिंक कर सकते हो आप गूगल या बिंग के साथ, किसी भी सर्च इंजन के साथ. बट स्टिल many people you will see that they write google.com, open the Google search engine, then write the query. The reason is they behave कि हमें वो नेविगेशन बार है और हमें सर्च के लिए अलग से सर्च इंजन बोल रहे हैं. बट नाउ मेनी पीपल डायरेक्टली राइट. अगर उन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट नहीं पता, दे जस्ट राइट पंजाब यूनिवर्सिटी देयर एंड लुक एट द रिजल्ट्स एंड देन क्लिक द फर्स्ट रिजल्ट, और समटाइम्स दे click the sponsored results as well.
तो वो स्पॉन्सर्ड या एड पे भी क्लिक कर देते हैं. So these are examples. So now how far do people look for this? So this even though these results are from 2006, but if I talk about myself, I rarely look after the first 10 results. So दूसरे पेज पे अभी हम काफी कम ही जाते हैं. So very rarely we go to the after 10 results. So these were the cases in the 2006. You can look at कि 2006 में क्या होता था. So after viewing first few entries, ज्यादातर लोग तो पहले 3-4 एंट्री देखते थे और 41% लोग तो पहला पेज ही देखते थे. Now I believe कि ये 41% is increased to even 75%. First two pages 68% उस ईयर में होता था, यानी कि पहले दो पेजेस इन तीनों को ऐड करते हैं 68% लोग देखते थे. तीसरे पेज पे भी उस टाइम पे लोग जाते थे. एंड then after 3 pages 12% people also go after 3 pages. So have any one of you go to the second or third page of the search engine results? आप जाते हो? No, sir. So you can now understand that कि how much important is the first page. तो पहला पेज इंपॉर्टेंट है, यानी कि पहले पेज के पहले 10 रिजल्ट इंपॉर्टेंट है. तो यू डू नॉट वांट टू इवन लुक एट कि सेकंड थर्ड पेज, यानी कि बिहेवियरल चेंजेस तो काफी है. 2006 के बाद 2020 में इफ वी डू नॉट फाइंड इन द फर्स्ट पेज, वी थिंक दैट माइट नॉट बी इंपॉर्टेंट और दैट माइट नॉट बी गुड इनफ टू कम इनटू द फर्स्ट 10 पेज. Now users empirical evaluation of the results. So quality of pages varies widely. So relevance is not enough. सिर्फ relevance से नहीं देखना कि ये 1 million results में से क्या है. So अदर डिजायरेबल क्वालिटीज भी हम चेक करते हैं. सिर्फ जो अभी तक हमने इंफॉर्मेशन ट्रीवल में देखा था, सिमिलरिटी जो हम वेक्टर वाइज देखेंगे, कोसाइन सिमिलरिटी देखेंगे, टीएफ आईडीएफ स्कोर देखेंगे, उसके अलावा देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच मैटर्स. सो यू आल्सो नो वांट टू नो दैट कि सिर्फ ट्रस्टवर्थी पेजेस को ही आप देखो. डाइवर्सिटी चाहते हो आप पहले 10 पेजेस में, सेम पेज ही रिपीट ना हो जाए. सेम कंपनी का सेम पेज ही पहले 10 रिजल्ट्स में डिफरेंट जगह पे सेम इंफॉर्मेशन रिट्रीव ना हो. व्हेन यू आर लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशनल थिंग, यू वांट टू हैव अ डाइवर्स इंफॉर्मेशन. कोई डुप्लीकेशन नहीं चाहते आप और वेल मेंटेन. जो भी वेब पेज हो, यू वांट कि भी वो करेक्टली डिस्प्ले हो और फास्ट डिस्प्ले हो. पहले ऐसा होता था कि पहले रिजल्ट पे क्लिक किया एंड इट इज नॉट ओपनिंग अप, इट इज टेकिंग टाइम, वो वेब सर्वर बड़ा स्लो है. इवन दो दैट इज उसमें इंफॉर्मेशन तो है बट इट इज टेकिंग टाइम. जहाँ कई बार वेब पेज खोलो उसके साथ इट इज वेरी पॉपअप्स खुल गए हैं, काफी एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स. सो यू डू नॉट वांट एनी अनोइंग पेज. सो पहले 10 रिजल्ट्स में you also want these things कि there should be trustworthy pages. इंफॉर्मेशन के साथ साथ ट्रस्ट होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, करेक्टली डिस्प्ले होने चाहिए, कोई एडवर्टाइजमेंट ना हो, कोई स्पैम ना हो, कोई फ्रॉड पेज ना हो. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर यू डिजायर इन ए पर्टिकुलर सर्च इंजन. यू डू नॉट वांट कि सिर्फ मेरी क्वेरी से मैच करें, बट आल्सो हैव दीज थिंग्स क्वालिटीज इन देयर. प्रिसीजन वर्सेस रिकॉल. रिकॉल नहीं चाहिए आपको, प्रिसीजन चाहिए कि पहले 10 रिजल्ट और जो आपको पहले दिख रहे हैं ये सारे के सारे करेक्ट होने चाहिए. इनकी प्रिसीजन 100%. सपोज रिकॉल में क्या है कि क्वेरी के लिए लेट्स से टोटल 500 पेजेस एक्सपर्ट कह रहे कि आ सकते हैं. यू डू नॉट बॉदर अबाउट कि सारे के सारे सर्च इंजन ने दिए कि नहीं दिए. यू ओनली लुक अबाउट फर्स्ट 10 रिजल्ट्स और पहले 10 रिजल्ट सारे के सारे करेक्ट होने चाहिए. You don't want कि भी पहले 10 रिजल्ट में सिर्फ नो करेक्ट है, even that is not acceptable to you. So you want first 10 100% precision. So precision मैटर करती है, वो भी पहले 10 में तो 100% होनी चाहिए. और even if you have to go to second page, still second page पे भी 100% precision. उसके बाद चाहे कम होती जाए precision,
और रिकॉल चाहे सारे के सारे रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, यू डू नॉट बॉदर, यू आर नॉट वरिड अबाउट कि भी सारे आ रहे हैं, यू वांट फर्स्ट 10 रैंक्ड रिजल्ट, आपको पहले अच्छे रिजल्ट ही चाहिए। सो यानी कि रिकॉल की वैल्यू तो बड़ी कम हो गई है। सो प्रिसीजन एट 100% प्रिसीजन मैटर करती है। प्रिसीजन अबव द फोल्ड रैंकिंग उसकी जैसे से प्रिसीजन हमारी मैटर करती है, हम उसको कहते हैं पैड 10 कि पहले 10 रिजल्ट की प्रिसीजन, फिर पैड 25 पहले 25 रिजल्ट्स की प्रिसीजन। सो दिस इज ऑलमोस्ट 100%, जिसको हम प्रिसीजन एट 1 कहते हैं, ऑलमोस्ट 100% चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिवनेस मस्ट बी एबल टू डील विद ऑब्सक्योर क्वेरीज। रिकॉल तभी मैटर करता है जब रिजल्ट सिर्फ 5 या 6 आने वाले हैं, जब नंबर ऑफ मैचेस आर वेरी स्मॉल, तब आपको है कि भी 5 आने वाले हैं या 10 आने वाले हैं, तो ये सारे के सारे आ जाए, ओनली देन रिकॉल मैटर। बट सिंस द साइज ऑफ वेब इज वेरी ह्यूज, इतने कम रिजल्ट्स तो कभी नहीं आते, हमेशा ज्यादा ही होते हैं। सो रिकॉल इज समथिंग विच नेवर मैटर्स, सो रिकॉल इज नॉट कंसीडर्ड नाउडेज, और सिर्फ प्रिसीजन ही मैटर करती है। User perception may be unscientific but are significant over large aggregate. Now you may say that कि user subjective होता है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को काफी desirable qualities को हम mathematical formula में नहीं ला सकते. They can be unscientific, but on an average people behave the same. So अगर 100 people की queries देखें तो उनको similar चाहिए होता है. So on an average people behave the same. So significant रहती है large aggregate पे. सो नाउ यूजर्स इंपेरिकल आप कैसे वैल्यूएशन करें इंजन्स की। सपोज अगर आपने सो दिस आल्सो वुड बी वन ऑफ द, आपको असाइनमेंट भी मिलेगी लेटर ऑन, यू विल आल्सो डू द evaluation of 2 search engines. So relevance और validity of results आपको मैटर करती है। यूजर इंटरफेस सिंपल, कोई क्लटरिंग नहीं होनी चाहिए, एरर टॉलरेंस होना चाहिए। अभी जो पॉपुलर सर्च इंजन है, एक तो गूगल है, एक अनदर इज बिंग, जो नॉर्मल क्वेरीज के लिए जो पॉपुलर है। और एज ए रिसर्चर आपको जो वेयर यू वुड बी गोइंग मोर इज scholar.google.com, जहां पे आपको सारे रिसर्च पेपर मिलेंगे, एंड जहां माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक रिसर्च, सो माइक्रोसॉफ्ट का भी एकेडमिक रिसर्च का एक दैट इज आल्सो गुड, इवन समटाइम्स इवन आई सर्च इन दैट। आप यानी कंपेयर कर सकते हो, इन दोनों को भी कर सकते हो। बट ये तो सभी में है, यूजर इंटरफेस सिंपल है, क्लटरिंग नहीं है, एरर टॉलरेंस है, एरर टॉलरेंस इन टर्म्स ऑफ स्पेलिंग एंड अदर थिंग्स। ट्रस्ट काफी इंप्रूव हो चुकी है नाउडेज, यू कैन क्लिक ऑन फर्स्ट 10 रिजल्ट्स, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ स्पैम। बड़ा रेयरली होगा कि गूगल पे कुछ ऐसा आ गया जो स्पैम है, अगर होगा भी तो दे रिकॉग्नाइज वेरी अर्ली एंड रिमूव इट। कवरेज ऑफ टॉपिक्स फॉर पॉलीसेमिक क्वेरीज, जिनके पॉली मतलब मल्टीपल सेम मीनिंग की क्वेरीज हैं, उनमें कवरेज, सो सिनोनिम्स, ऑल दीज थिंग्स आर नाउ बीइंग डन, सो इट हैज बीन इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स। फिर 20 years back ऐसा नहीं था, over the years we have seen these have been evolved. प्री एंड पोस्ट प्रोसेसिंग टूल्स, ये आपने गूगल में भी देखा होगा, ऊपर आपको साथ में बटन्स आ जाते हैं जिसमें आप टाइम मेंशन कर सकते हो, साइज या कुछ और आप अपनी क्वेरी को इंप्रूव कर सकते हो। सो स्पेलिंग चेकिंग के लिए आ जाता है, डू यू मीन दिस थिंग। सो सर्च असिस्टेंस आपको मिलती है हर सर्च इंजन में। Then explicitly search within the results, so this is also there, and more like this refinement कर सकते हो आप। And all search engines anticipate what you want to search, जैसे जैसे आप सर्च इंजन में टाइप करते हो वैसे वैसे ही रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। Now search engine also deal with idiosyncrasies. Idiosyncrasies the way अभी जैसे ज्यादातर यूजर है, they do not bother to write the correct spelling या correct way से, उनको लगता है कि सर्च इंजन खुद ही डील करेगा, और सपोज करेक्ट स्पेलिंग आते भी हैं किसी चीज के, बट दे डू नॉट ट्राई टू
गो इनटू डिटेल, वो एब्रीवेशन यूज करेंगे या कुछ भी करेंगे, मतलब कि ज्यादातर यूज काफी इडियोसिंक्राइज वे से क्वेरीज लिखते हैं। दे डू नॉट बॉदर कि यहाँ सर्च इंजन को प्रॉपर क्वेरीज देनी है, वो कुछ भी लिख के देंगे। एंड नाउ ऑल ऑफ दीज सिंबल्स या एब्रीवेशन या शॉर्टकट्स या स्पेलिंग एरर जो यूजर डू नॉट बॉदर अबाउट कि उनको ठीक लिखने हैं। सो ऐसी कोई भी इडियोसिंक्रेसीज है, सर्च इंजन उससे डील करना, दे नो डेट हाउ टू डील इट। दे अकॉर्डिंगली दे डू द स्टैमिंग, स्पेल चेकिंग, और दे समटाइम्स राइट कि जो क्वेरीज वेबसाइट का नाम लिख देंगे, उनको लग रहा है कि वेबसाइट खोलनी है तो सर्च बार में वेबसाइट का नाम लिख के दे डू द सर्चिंग। सो दे दिस काइंड ऑफ क्वेरीज जो भी लोगों की इडियोसिंक्रेसीज है, सो पीपल राइट एनीथिंग इन दैट, दे डू नॉट बॉदर कि भी उनको प्रॉपर लिखना है। एंड दे वांट कि स्पेल सर्च इंजन डील विद दिस, एंड नाउ ऑल द सर्च इंजन डील, यू राइट एनीथिंग, आपने कुछ भी लिख दिया है, सर्च इंजन स्टिल वुड लाइक टू डील विद दिस। सपोज आपने बैंक की साइट पे जाना है, यू डोंट नो कि बैंक, सो कैनरा ट्रांसैक्शंस, आपको कैनरा की स्पेलिंग नहीं पता, कनेरा लिख दिया, सो ट्रांसैक्शंस लिख दिया। सो यू डू नॉट बॉदर कि मुझे ठीक स्पेलिंग लिखना है, यू सी कि भी स्पेलिंग तो गूगल का ही काम है ठीक करना। तो so all these idiosyncrasies are dealt by the search engines. So first, last and best and worst, so all of these things, so you want कि भी आपको पूरे रैंक रिजल्ट्स मिलने चाहिए, everything, so you try to type anything and try to go with anything। और जो स्पोकन वर्ड्स हैं, अभी यू नो डैट कि विद ईच सर्च इंजन के साथ वी कैन आल्सो स्पीक लाइक ओके गूगल कह के वी कैन सर्च एनीथिंग। जहाँ सीरी में, एप्पल में सीरी से हम वी कैन आस्क, सो जहाँ माइक्रोसॉफ्ट में कोर्टाना से वी कैन सर्च एनीथिंग, एंड अमेजन में भी एलेक्सा में वी कैन सर्च। सो ऑल ऑफ दिस जो स्पोकन बेस है, ये आपके लाइफ टाइम में भी इम्प्रूव हो रहे हैं। सो मोर यू यूज ऑन योर मोबाइल फोन और थिंग, यू नो दैट दीज आर इम्प्रूविंग। और इसमें इडियोसिंक्रेसी ज्यादा है, सो व्हेनेवर वी से एनीथिंग टू दीज, वी से ओके गूगल एंड वी देन वी स्पीक एनीथिंग, इवन नॉट इन a single language but in the mixed language। So they need to deal with all these things the way human being deals, so all of these search engine need to deal with these things। Now web document collection, we know that web document का कोई भी डिजाइन नहीं है, वेब सर्च इंजन का कोई ऐसा नहीं है कि कुछ ग्राफ, कोई डिफाइंड ग्राफ है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है वेब पे, इट कीप ऑन इंक्रीजिंग। इसमें सोशल मीडिया ऐड कर दोगे तो which is now a major part, Facebook, Instagram, all these sites। So when you add all these things along with other websites, social media sites जिनको भी आप ऐड करोगे, तो you will find there is no design coordination, still you want to search। So content creation काफी distributed है, linking, democratization of publishing, people publish anything, refer anything। So कुछ भी वो नहीं, आपके रिसर्च पेपर में भी when you cite 30 papers, so there is nobody is controlling who is किसको वो लिंक कर रहा है, किसको लिंक नहीं कर रहा। सो कंटेंट भी हर तरह का है, इट आल्सो इंक्लूड ट्रूथ्स, लाइज, फेक, ऑब्सोलीट इंफॉर्मेशन, कॉन्ट्राडिक्शंस, एवरीथिंग इज देयर ऑन द वेब। बट सर्च इंजन से क्या चाहते हो आप? सर्च इंजन से तो यू वांट ओनली ट्रूथ, यू डोंट वांट लाइज एंड ऑब्सोलीट इंफॉर्मेशन। बट वेब पे तो सब कुछ है और सब कुछ इंडेक्स हो रहा है, इवन फेक थिंग्स आर बीइंग इंडेक्स। But from the search engine you want only the authenticate information। Unstructured text, HTML, structured, हर तरह की चीज है। So वेब पे तो कुछ भी लिखा हो, वेब पे तो कोई लिख दे कि माउंट एवरेस्ट की हाइट, किसी ने फीट में लिखने की बजाय 8000 किलोमीटर लिख दिया, कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन दे दिया अपने ब्लॉग में। So now this is wrong information, but when you ask the Google, you want कि वो तो correct ही देगा information। So
बट वेब इज में ये सब कुछ है, एवरीथिंग इज ऑन द वेब. Scale is very much larger than the previous test. So corporate records are catching up, but still scale of web is very high. So it is trillion और काफी increase होता जा रहा है. Even though आप growth rate जो पहले था उससे काफी कम हो गया, भी doubling पहले तो हर few months में होती थी, but still it is expanding. And content can be dynamically generated nowadays. अब जब से bots आ गए हैं, so they are writing the contents. So पहले तो सिर्फ humans write करते थे contents, तो humans से अब now bots write the contents. Most of the post on the web blogs or on the Facebook, on the Twitter, so ये सब more than 50% are written by the bots. So जितनी भी posts हैं, so they are more than 50% are by the bots. Now trouble with the paid search ads, it cost money. So what is the alternative? So search engine optimization. So people are going with the search engine optimization because we know that first 10 results matter to us. So tuning your web page to rank highly in the algorithmic search results for highly select keywords. We know that in India this market is very big. 60% of world's market for search engine optimization is in India. इंडिया में इस चीज की मार्केट काफी बड़ी है. So alternative to paying for the placement. So this is intrinsically marketing function. So सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में अभी आपको यू नो डैट कि ट्विटर वगैरह पे भी ट्रेंडिंग में टॉप ट्रेंड्स में आए, इवन सोशल मीडिया पे भी इट हैज नाउ ग्रोन अप बिकॉज दे आल्सो इंडेक्स इट. It has also grown up on social media and slowly catching up on the e-commerce sites पे भी आ रहा है कि what you want to purchase वहां पे क्या दिखना चाहिए, वहां पे भी catch up हो रहा है. So these are performed by companies जिनका काम ही है on these sites, webmasters, consultants. So काफी बड़ी मार्केट है on you know that जब भी elections होते हैं तो you know that kind of search results that you are seeing. मीडिया में तो अभी आपने देखा, मीडिया इज नॉट कंट्रोल्ड बाय ओनली बाय जर्नलिस्ट, इट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द बोट्स. अभी कौन सी न्यूज आपके न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे आनी चाहिए, पहले ह्यूमन डिसाइड करते थे. जैसे आज आप अब न्यूज़पेपर खोलो, फ्रंट पेज पे क्या आना चाहिए, तो एडिटर डिसाइड की फ्रंट पेज पे क्या आएगा. बट नाउ दीज बोट्स डिसाइड्स कि क्या चीज पॉपुलर है, लोग क्या पढ़ना चाहते हैं और क्या चीज की ज्यादा रीडेबिलिटी होगी. सो दीज बोट डिसाइड व्हाट हाउ द फर्स्ट पेज ऑफ योर न्यूज़पेपर वुड बी क्रिएटेड. सो ह्यूमन उसमें इंट्यूशंस कम आनी स्टार्ट हो गई. ह्यूमन बाइसिंग जो थी, जो लोग पढ़ना चाहते हैं उस हिसाब से फ्रंट पेज इज नाउ बीइंग क्रिएटेड बाय द बोट्स इन मैनी ऑफ द न्यूज़पेपर. तो आपके इवन जो वेब पे न्यूज़पेपर है, यू ओपन एनी न्यूज़पेपर वेबसाइट्स, टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई भी वेबसाइट देखो, उसका जो सामने की न्यूज़ है वो कौन सी होनी चाहिए, इट इज नॉट डिसाइडेड बाय द ह्यूमंस, इट इज डिसाइडेड बाय द बोट्स कि क्या चीज लोग ज्यादा क्लिकेबल होगी, व्हाट इज बीइंग डन. एंड मेनी टाइम्स यू विल सी दैट पीपल ब्लेम कि हाँ भी इस न्यूज़ मीडिया ने ऐसा किया वैसा किया, बट मोस्ट ऑफ देम आर यूजिंग द बोट्स. They tell what people want to see. If you stop clicking something, वो जो जो पॉपुलर है वो कम आना स्टार्ट हो जाएगा. जो वीडियोस पॉपुलर होते हैं वो अपने आप ही न्यूज चैनल्स पे उनकी वेबसाइट पे आ जाएंगे, जो न्यूज पॉपुलर होगी. सो ओनली थिंग ह्यूमन कैन डू इज दे कैन मेक ए गुड हेडलाइंस टू मेक इट पॉपुलर. बट उसके लिए भी अभी फेक न्यूज जनरेशन पे काफी काम स्टार्ट हो गए. इवन अभी मेरे अंडर ही बीटेक के 2 ग्रुप्स, दे आर वर्किंग ऑन दिस पार्ट ओनली. सो दे आर वर्किंग ऑन द फेक न्यूज जनरेशन ओनली, हाउ टू जनरेट अ फेक न्यूज, सो हाउ टू जनरेट अ फेक टाइटल्स. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बीइंग डन बाय द बोट्स. तो
न्यूज़ ऐसी जनरेट होनी चाहिए जो लोग लाइक करें और लोग पढ़ें और उस वेबसाइट पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करें. So that's why overall the way this web is changing is now it is completely in the hand of the bots. So काफी कुछ लीगल वे से भी होता है, ये सब कुछ लीगल वे से भी हो रहा है और many things are shady as well. So all of these things are happening in the all around you. So as a researcher, जब भी आप when you go into the society as a computer science engineers, so you are supposed to act smartly around these things. You know that कि भी मीडिया में कुछ आया या फेसबुक पे कुछ आया और या कुछ ट्विटर में ट्रेंड चल रहा है, तो these are not only created by humans, these are also created by the bots. So they are influencing you and you must be smart enough to understand these things. So search engine optimization, so motives, हमेशा commercial, political, religious, lobbies, all of these things keep on happening. So suppose ये अभी आप whenever you will see that in future as well, suppose इंडिया में कहीं पर डैम बनना है, so obviously कोई lobby इसके against जाएगी so that इंडिया की एनर्जी स्ट्रेटजी ना पूरी तरह से हो. So you will start looking at कि न्यूज़ उसके against आनी स्टार्ट हो गई है. So जहाँ इंडिया में कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर लगना है तो न्यूज़ उसके अगेंस्ट आनी स्टार्ट हो गई है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जहाँ इंडिया में कोई बड़ी इंडस्ट्री लगने वाली है, सपोज नेक्स्ट ईयर यू विल सी कि लेट्स से टेस्ला, इलोन मस्क ट्राई टू कम टू इंडिया. तो एट दैट टाइम यू सी दैट कि किस टाइप की न्यूज़ आनी स्टार्ट होगी, वेदर पीपल स्टार्ट कि भाई बैटरी से पोल्यूशन होगा, ये होगा, वो होगा, सो बैटरीज डिस्चार्ज होंगी, क्या होगा. सो दीज थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड हु इज डूइंग, क्या बोर्ड्स कर रहे हैं, ह्यूमंस कर रहे हैं. सो मोटिव्स कुछ भी हो सकते हैं. सो प्रमोशंस फंडेड बाय एडवर्टाइजिंग बजट से भी ये मोटिव्स हो सकते हैं. ऑपरेटर्स काफी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कंपनीज हैं, दे यूज ह्यूमंस, बोर्ड्स, वेब मास्टर्स हैं, होस्टिंग सर्विसेज हैं, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स एज आई टोल्ड 60% ऑफ वर्ल्ड का बिजनेस इंडिया में होता है. सो इंडियन industry is doing a lot of work in these things. And there are many forums, search engine specific tricks, discussion about academic papers. So all of these things are happening. So even COVID related, we now you have to see that how the news are changing, how they are going from the first page to second page of the, and why they are happening. जब वैक्सीनेशन आएगी, अभी वैक्सीनेशन नहीं आ रही, वैक्सीनेशन आने से पहले क्या होना स्टार्ट हो जाएगा. यू जस्ट लुक एट द टाइमलाइन. सपोज वैक्सीनेशन फेब में आनी है, तो यू स्टार्ट लुकिंग एट कि जनवरी में हाउ दे हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग द एनवायरनमेंट सो दैट you go for the vaccination. So all of these things would happen and you have to learn from these things as a computer science engineers. Since if you join some company, at some end you might be making these kind of bots yourself. You might need to understand what is happening. So अभी आपके लिए लेटेस्ट अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जैसे यूएस इलेक्शन के पहले अभी कैसे हो रहे हैं, देन कोविड वैक्सीनेशन में कैसे न्यूज़ चेंज होंगी, whether you are prompt enough to go for vaccination, जहाँ आप वैक्सीनेशन नहीं करवाते. अभी काफ़ी वायरसेस हैं, सबकी वैक्सीनेशन एज ए चाइल्ड आपकी हुई होगी बट एल्डर्स ने नहीं कराई होगी. देयर आर मेनी वायरस, टाइफाइड की कोई वैक्सीनेशन नहीं कराता, स्वाइन फ्लू की कोई वैक्सीनेशन नहीं करवाता इवन दो स्वाइन फ्लू फैल जाता है. सो हर्पेस वायरस की कोई वैक्सीनेशन नहीं करवाता. सो देयर आर मेनी वायरसेस. हेपेटाइटिस बी की आप लोगों के टाइम स्टार्ट हो गया था व्हेन यू बोर्न, बट उससे जो एल्डरली है दे मे नॉट हैव गॉन फॉर दिस. हेपेटाइटिस सी का काफ़ी टाइम से आया हुआ है, पीपल डू नॉट गो. गर्ल्स के लिए सर्वाइकस के लिए वैक्सीनेशन होती है, बट आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली गॉन फॉर वैक्सीनेशन ऑफ दिस वन. बट अगर कोविड की वैक्सीनेशन लोग नहीं करवाएंगे तो काफी $1 बिलियन का लॉस हो जाएगा. तो जो उस लॉस को बचाने के लिए वो कंपनीज कैसे न्यूज क्रिएट करेंगी, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स.
आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वाई पीपल हैव नॉट गॉन फॉर ये, दीज आर वेरी डेडली वायरस जितने भी हैं। सो इनकी वैक्सीनेशन एल्डरली लोग नहीं करवा रहे, बच्चों में होती है। तो बट कोविड के टाइम पे ऐसा ना हो कि 50% लोग वैक्सीनेशन करवाए ना, तो $1 बिलियन का लॉस हो जाएगा। सो दे नीड टू क्रिएट न्यूज, दे नीड टू क्रिएट पैनिक अराउंड दैट वैक्सीनेशन आने से 1 महीना पहले। यू नीड टू लुक अपॉन कि हाउ दीज लॉबीज स्टार्ट वर्किंग इन दैट केस। So that's why search engine optimization के साथ you have to keep your eyes open around the news, why this is happening, why this is on the front page, why political news are coming. So as an individual, your intellectual ability should increase to understand these things happening around you, because you know that you will be the person who is working behind these boats. आप लोगों ने behind the scene work करना है। ये क्लियर है सबको? एनी डाउट्स आज के लेक्चर में कुछ किसी को? नो सर।